اگر آپ برج حمل یعنی کہ ایریز سے تعلق رکھتے ہیں تو ذرا مضبوط دل کر لیجئے، کیونکہ 6 اگست سے 11 اگست تک کا یہ وقت، یہ ہفتہ صرف ایک عام ہفتہ نہیں، یہ وہ موڑ بن سکتا ہے جہاں ایک خاموش حقیقت آپ کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے گی۔ شاید آپ کافی عرصے سے کسی بات کو نظر انداز کر رہے تھے، شاید دل بار بار ایک ہی اشارہ دے رہا تھا، مگر آپ نے خود کو مصروف رکھ کر اس آواز کو دبا دیا۔ لیکن اب حالات بدل رہے ہیں، ایک ایسا پردہ اٹھنے والا ہے جس کے بعد کچھ فیصلے پہلے جیسے آسان نہیں رہیں گے۔ اس ہفتے ایک چھوٹی سی غلطی آپ کو مالی یا جذباتی نقصان کی طرف لے جا سکتی ہے، جبکہ ایک درست قدم آپ کی قسمت کا رخ بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس لیے آج کی یہ رہنمائی آخر تک ضرور دیکھیے گا، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، کیونکہ درمیان میں ایک ایسی بات آئے گی جو شاید آپ کی ابھی تک دیکھ نہیں پا رہے۔ اگر آپ کی پیدائش برج حمل ایریز میں ہوئی ہے، یا آپ کا مون سائن ایریز ہے یا سن سائن ایریز ہے، تو یہ تمام اثرات آپ کے دل، سوچ، روزگار، گھر، محبت اور آنے والے فیصلوں پر نمایاں ہو سکتی ہیں۔ کیا آپ نے محسوس کیا ہے کہ چند دنوں سے دل بے وجہ بے چین رہتا ہے؟ کبھی سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود سکون نہیں ملتا، کبھی معمولی بات بھی دل پر بوجھ بن جاتی ہے، کبھی ایسا لگتا ہے کہ لوگ آپ کو سمجھ ہی نہیں رہے۔ اگر واقعی ایسا ہے تو یقین جانیے آپ اکیلے نہیں۔ آسمانی جو ہے نا گردشیں اس ہفتے آپ کے اندر کی دنیا کو باہر کی دنیا سے زیادہ متاثر کرے گی۔ سورج آپ کی شخصیت اور اعتماد کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن چاند کے بدلتے اثرات آپ کے جذبات کو بار بار آزمائیں گے، اور زحل آپ کو یہ احساس دلائے گا کہ جن ذمہ داریوں سے آپ بھاگ رہے تھے، آپ ان کا سامنا کیے بغیر آگے بڑھنا ممکن نہیں۔ راہو کچھ ایسی حقیقتوں کو دھندلا سکتا ہے جنہیں آپ صاف سمجھ رہے ہیں، جبکہ مریخ آپ کے اندر جوش بھی پیدا کرے گا، اور جو ہے جلد بازی بھی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سمجھداری اور جذبات کی جنگ شروع ہوگی۔ اس ہفتے ہر بات فوراً مان لینا بھی نقصان دے سکتا ہے، اور ہر بات پر شک کرنا بھی، اس لیے توازن ہی آپ کی سب سے بڑی طاقت ہوگا۔ ہفتے کے آغاز میں ایک عجیب کیفیت محسوس ہو سکتی ہے، دل چاہے گا کہ سب کچھ چھوڑ کر خاموشی اختیار کر لی جائے۔ کچھ لوگ پرانی یادوں میں کھو جائیں گے، کچھ ایسے کسی فیصلے پر دوبارہ سوچیں گے، جبکہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو یہ محسوس کریں گے کہ جیسے قسمت انہیں بار بار ایک ہی سبق سکھا رہی ہے۔ یہاں ایک سوال ہے، سوال سے پہلے میں آپ سے کہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ کیا آپ بھی بار بار ایک ہی قسم کے لوگوں پر اعتماد کرتے ہیں اور پھر آخر میں مایوسی ہی ہاتھ آتی ہے؟ اور اگر جواب آپ لوگوں کا ہاں میں ہے تو سبسکرائب کر لیجئے گا چینل کو، اور لائک کر دیجئے گا۔ تو اس ہفتے اسی بات کا راز بھی کھل سکتا ہے اگر آپ کا جواب ہاں ہے۔ زندگی صرف دوسروں کو بدلنے سے نہیں بدلتی، بعض اوقات اپنے انتخاب بدلتی ہے۔ یہی وہ سبق ہے جو اس ہفتے آپ کے سامنے آنے والا ہے۔ اگر آپ ملازمت کرتے ہیں تو کسی بڑے فیصلے میں جلد بازی نہ کریں، ممکن ہے کوئی نئی پیشکش سامنے آئے، مگر ہر چمکتی چیز سونا بھی نہیں ہوتی۔ ایریز، پہلے اچھی طرح معلومات حاصل کریں، پھر قدم اٹھائیے۔ اگر آپ روزگار کرتے ہیں تو کسی پرانے ادائیگی یا رکی ہوئی رقم کے بارے میں اچھی خبر مل سکتی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ایک غیر ضروری خرچہ بھی سامنے آ سکتا ہے، اس لیے جو رقم آئے اسے فوراً خرچ کرنے کی بجائے کچھ حصہ محفوظ رکھیے۔ آنے والے دنوں میں بھی یہی احتیاط آپ کے لیے سکون کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر آپ سرمایہ لگانے کا سوچ رہے ہیں تو ہفتے کے پہلے 2 دن انتظار کر لیجئے گا، بہتر ہوگا۔ جلد بازی بعد میں پچھتاوے میں بدل سکتی ہے۔ ہفتے کے درمیانی حصے میں حالات نسبتاً واضح ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ایک ایسا شخص جس سے آپ نے امید چھوڑ دی تھی اچانک رابطہ کر سکتا ہے، لیکن یہاں بھی جذبات سے زیادہ عقل کی ضرورت ہوگی۔ ہر واپسی آنے والا انسان دوبارہ وہی مقام حاصل کرنے کے لیے نہیں آتا، بعض اوقات وہ صرف ایک سبق مکمل کرنے واپس آتا ہے۔ محبت کے معاملے میں اگر آپ کسی رشتے میں ہیں تو خاموشی کو دشمن نہ بننے دیں۔ بہت سے مسائل صرف اس لیے بڑھ جاتے ہیں کیونکہ دونوں طرف سے کوئی پہل نہیں کرتا۔ اگر دل میں شک ہے تو الزام لگانے کے بجائے بات کریں۔ اگر دل میں محبت ہے تو اسے اظہار کی ضرورت ہے، یعنی اس محبت کو اظہار کی ضرورت ہے۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں، سنگل ہیں، تو کسی نئے تعارف یا امکان موجود ہے، نئے تعارف کا امکان موجود ہے، مگر اس رشتے کو وقت دیجیے۔ صرف چند اچھی باتوں پر دل کا فیصلہ نہ کیجیے۔ انسان
को पहचानने में वक्त लगता है और यही वक्त बाद में बड़ी दुख से बचा लेता है। घर के माहौल में भी कुछ तब्दीली महसूस होगी। वालिदैन की सेहत या किसी बुजुर्ग के जिम्मेदारी आपको आपकी ना तवज्जो मांग सकती है। अगर काफी अरसे से किसी अजीज से नाराजगी चल रही है तो इस हफ्ते सुलह का दरवाजा खुल सकता है। कभी कभी एक नरम लेचा बरसों की दूरी खत्म कर देता है। क्या आपने गौर किया है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख हमेशा अपने ही देते हैं, लेकिन यही अपने सबसे बड़ी ताकत भी बन जाते हैं। अगर अना को दरमियान से हटा दिया जाए, इस हफ्ते यही इम्तिहान आपके सामने आ सकता है। सेहत के लिहाज से जिस्म से ज्यादा जहन को आराम की जरूरत होगी। ज्यादा सोचना, हर बात को दिल पर ले लेना और रात देर तक जागना आपकी तवानाई कम कर सकता है। पानी ज्यादा पिए, नींद पूरी कीजिए और गैर जरूरी बहस से बचिए। बाजुकात सुकून जीतने में नहीं बल्कि खामोश रहने में होता है। हफ्ते के तीसरे दिन एक ऐसा लम्हा आ सकता है जब आपको महसूस होगा किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, लेकिन यही वो लम्हा होगा जहां सब्र आपका सबसे बड़ा हथियार बनेगा। हर बंद दरवाजा हमेशा के लिए बंद नहीं होता। कुछ दरवाजे सिर्फ इसलिए बंद होते हैं ताकि आप गलत रास्ते पर आगे ना बढ़े, यानी आप गलत रास्ते पर आगे ना बढ़ जाएं। इस बात को याद रखें कि क्योंकि अगले हिस्से में हम इस राज पर बात करेंगे कि इस हफ्ते कौन सा दिन सबसे ज्यादा हसास है, किस दिन माली फायदा मिलने के इम्कानात बढ़ते हैं, किस वक्त बड़ा फैसला लेना बेहतर होगा। राहु और ज़ोल का मुश्तरका असर आपकी किस्मत में कौन सी छुपी हुई तब्दीली ला सकता है। मोहब्बत, औलाद, सफर, बैरून मुल्क और मौके और एक ऐसी पोशीदा हकीकत जिसे नजरअंदाज करना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसलिए इस रहनुमाई को अधूरा आधी वीडियो मत देखिएगा बल्कि मुकम्मल देखिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। अब आइए इस हफ्ते के दूसरे और ज्यादा अहम हिस्से की तरफ चलते हैं, क्योंकि बहुत से बरजमल आयरीज अफराद के लिए इस असल तब्दीली यही से शुरू होती है। अगर आपने शुरू से अब तक की बातों पर गौर किया है तो शायद आप समझ चुके होंगे कि इस हफ्ते हर फैसले किस्मत के सहारे नहीं बल्कि आपकी समझदारी के सहारे आगे बढ़ेगा। सबसे हसास वक्त हफ्ते का दरमियानी हिस्सा साबित हो सकता है। इन दिनों में कोई ऐसी खबर, पैगाम, मुलाकात या आपके जहन को उलझा सकती है। यानी पहली नजर में जो बात बहुत अच्छी लगी, जरूरी नहीं कि वो हकीकत में वैसी ही हो। इसलिए हर सुनी सुनाई बात पर यकीन ना करें। अगर कोई शख्स आपसे जल्दी में जवाब मांगे तो खुद को वक्त दीजिए। खामोशी में किया गया दुरुस्त फैसला जल्दबाजी में किए गए बड़े फैसलों से कहीं ज्यादा कीमती होता है। मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं आपके माली मामलात इस हफ्ते खास तवज्जो मांग रहे हैं। अगर आप काफी अरसे से रिस्क में बरकत ना होने की शिकायत कर रहे हैं तो इसकी एक वजह गैर जरूरी खर्चे भी हो सकते हैं। इस हफ्ते कोशिश करें कि हर खर्च से पहले खुद से एक सवाल करें, क्या ये वाकई जरूरी है? अगर जवाब वाज़ेह ना हो तो चंद दिन इंतजार कीजिए। बहुत मुमकिन है कि बाद में आप खुद महसूस करेंगे कि वो खर्च करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर किसी ने उधार मांगा है तो सिर्फ जज्बात की बुनियाद पर फैसला ना करें। पहले अपनी जरूरत को देखें, फिर दूसरों की मदद कीजिए। रिस्क कमाने से नहीं बल्कि संभालने से भी बढ़ता है। अगर आप कारोबार, बिजनेस करते हैं, बिजनेस से वाबस्ता हैं, तो पुराने क्लाइंट्स जो हैं वो दोबारा आपके पास आ सकते हैं। कोई रुका हुआ पेंडिंग काम अचानक आगे बढ़ सकता है। अगर आप मुलाजमत करते हैं, जॉब करते हैं, तो किसी जिम्मेदारी में इजाफा हो सकता है। शुरू में ये बोझ महसूस होगा आप लोगों के लिए, लेकिन यही जिम्मेदारी आगे चलकर आपकी पहचान भी बन सकती है। इसलिए शिकायत करने की बजाय खुद को साबित करने की कोशिश कीजिए। बाज़ औक़ात तरक्की पहले काम की सूरत में आती है, इनाम बाद में मिलता है। मोहब्बत के मामलात में इस हफ्ते अजीब सी कैफियत रह सकती है। अगर आप किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो दिल चाहेगा कि वो आपको बगैर कहे समझ ले, लेकिन हर इंसान दिल की जुबान नहीं पढ़ सकता। अगर कोई गलतफहमी है तो खामोश रहकर इसके बढ़ने का इंतजार ना करें। एक साफ और नरम गुफ्तगू कई टूटे हुए रिश्तों को बचा सकती है। अगर आप शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, तो शरीक हयात, आपका पार्टनर, आपकी वाइफ या हस्बैंड ये किसी बात को अना का मसला ना बनाइए। बाज़ औक़ात सामने वाला सिर्फ आपकी तवज्जो चाहता है, मुखालफत नहीं। अगर आप अभी तक आपकी शादी नहीं हुई, सिंगल हैं, तो इस हफ्ते
किसी नए तारुफ या रिश्ते की बात सुनने को मिल सकती है, लेकिन सिर्फ ज़ाहिरी बातों पर फैसला ना करें। किरदार, जिम्मेदारी, खानदानी सोच को ज़रूर देखें। जल्दी में किया गया इंतखाब कई साल की आजमाइश बन सकता है, जबकि थोड़ा सा इंतज़ार एक बेहतर मुस्तकबिल दे सकता है। घर के माहौल में अगर काफ़ी अरसे से कोई खामोश कशीदगी चल रही है तो इसके ख़त्म होने के आसार भी मौजूद हैं। मुमकिन है ख़ानदान का कोई फर्द आपके लिए ऐसी बात कह दे जो पहले कभी ना कही हो। इस मौके पर पुरानी शिकायतें दोहराने के बजाय नए ताल्लुक की बुनियाद रखिए। याद रखिए, माफ़ करना हमेशा कमज़ोर होने की निशानी नहीं, बल्कि मजबूत दिल की पहचान होता है। सेहत के एतबार से इस हफ्ते सबसे ज़्यादा ख्याल ज़हनी सुकून का रखना होगा। अगर आप हर मसले को अपने अंदर जमा करते रहेंगे तो जिस्म भी इसका असर महसूस करेगा। सर का बोझ, थकन, बेख्वाबी या दिल की बेचैनी सिर्फ जिस्मानी मसला नहीं बल्कि ज़हनी दबाव की अलामत भी हो सकती है। रोज़ाना कुछ वक्त खामोशी में गुजारिए, गहरी सांसें लीजिए, पानी ज़्यादा पिए और अपने मामलात में एतदाल रखिए। अब ना एक ऐसी बात जिसे बहुत से लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, राहु का असर बाज़ औक़ात इंसान को वो दिखाता है जो हकीकत नहीं होता। इस हफ्ते अगर आपको लगे कि सब लोग आपके खिलाफ हैं या किस्मत ने आपको छोड़ दिया है तो फौरन इस सोच पर यकीन ना कर लीजिएगा। हो सकता है हकीकत इसके बिल्कुल ऑपोजिट हो। इसलिए हर मनफी ख्याल को सच समझ लेना दुरुस्त नहीं। ज़हल आपको आजमाएगा, लेकिन यही आजमाइश आपके अंदर वो मजबूती पैदा करेगी जिसकी आने वाले महीनों में ज़रूरत पड़ने वाली है। क्या आपने महसूस किया है कि कभी कभी अल्लाह ताला कभी कुछ चीज़ें देर से देते हैं, लेकिन जब देता है तो इंसान समझ जाता है कि अगर ये पहले मिल जाती तो शायद वो इसकी कदर ही ना करता। यही कैफियत इस हफ्ते बहुत से बुर्ज अमल आरिज़ अफराद महसूस करेंगे। जिस काम में ताखीर हुई इसके पीछे भी एक हिकमत हो सकती है, इसलिए हर ताखीर को नाकामी ना समझिए। हफ्ते के आखिरी 2 दिन निस्बतन बेहतर रह सकते हैं इंशाअल्लाह। अगर कोई अहम मुलाकात करनी हो, मुस्तकबिल का मंसूबा बनाना हो या किसी नए काम की बुनियाद रखनी हो तो इन्हीं दिनों में ज़्यादा सुकून के साथ मजबूत मंसूबा बंदी करिएगा। अलबत्ता बड़े माली खतरे, जज्बाती वादे या गुस्से में किए गए फैसले से पूरी तरह बचिए। एक लम्हे का जोश कई महीनों की परेशानी बन सकता है। एक हफ्ता आपको एक और सबक भी दे सकता है। ये हफ्ता हर वो शख्स जो आपकी तारीफ करता है जरूरी नहीं कि वो आपका खैर ख्वाह हो, और हर वो शख्स जो आपकी गलती बताता है जरूरी नहीं कि वो आपका दुश्मन हो। इसलिए लोगों की बातों के बजाय इनके अमल को देखिए। यही समझ आपको आइंदा बहुत से नुकसान से बचा सकती है। अगर आप दिल से दुआ करते हैं, मोहब्बत जारी रखते हैं और हलाल रास्ता जो है ना इख्तियार करते हैं तो इंशाअल्लाह इस हफ्ते के बाद आपके लिए ऐसे दरवाजे खुल सकते हैं जिनके बारे में आपने सिर्फ सोचा था। उम्मीद कभी न छोड़िए, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए ऐसे रास्ते पैदा फरमा देते हैं जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हर मुश्किल हमेशा के लिए नहीं रहती और हर अंधेरी रात के बाद रोशनी सुबह जरूर आती है। अगर इस हफ्ते कभी दिल टूटे, हौसला कमजोर पड़े या लगे कि कोई आपको नहीं समझ पा रहा तो एक बात जरूर याद रखिए, अल्लाह ताला आपके हर आंसू, हर दुआ और हर खामोश सब्र को जानते हैं। इस यकीन के साथ आगे बढ़ते रहिए। अपने दिल को मायूसी के हवाले मत कीजिए और अच्छे गुमान के साथ नई सुबह का इस्तकबाल कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसी तरह बुर्ज हमल एरिस के बारे में दिल से जुड़ी हुई रहनुमा और अहम इशारे आने वाले दिनों की तफसीली मालूमात आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे तो हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह ताला आपके रिज्क में बरकत अता फरमाए, आपके घर में सुकून, आपकी मेहनत में कामयाबी और आपके दिल में हमेशा उम्मीद कायम रखें। आमीन। अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।